students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is Introduction to PowerPoint 2010. Hello friends, do you know what is a presentation? What is its use? In which software can we create it? Do you want to learn about it? There is a special program called PowerPoint that helps us to create presentations. Let us learn about this. तो क्या आपको पता है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे इसे बनाया जाता है? तो पावर पॉइंट जो है ये हमें हेल्प करता है हमारी प्रेजेंटेशन को बनाने में। कैसे हम इसमें अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, कैसे उसे एडिट करते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. We have already learned about a word processing software MS Word that is a part of Microsoft Office. The Microsoft Office package includes another essential program called MS PowerPoint, a software which helps us to prepare computer-based presentation that may include text, pictures, charts, audio, video and animated special effects. Some example of presentation software are SlideShare, Wink, PowerPoint, कीनोट एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि MS वर्ड जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको सब चीज़ें, अपने म्यूज़िक भी डालना है, टेक्स्ट भी डालना है, डॉक्यूमेंट्स भी डालनी है, आपको वीडियो भी डालना है, एनिमेशन भी डालना है, तो ये सब चीज़ें मिला करके आप कहाँ क्रिएट कर सकते हो? ये आप क्रिएट कर सकते हो MS पावर पॉइंट में। इसमें अलग अलग स्लाइड्स होती हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को, अपने साउंड्स को या अपने ग्राफिक्स को या अपने एनिमेशन को, वीडियोस को आप इसमें डाल सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बाइट. द आइडिया फॉर पावर पॉइंट केम फ्रॉम द माइंड ऑफ बॉब गैस्किन्स. ही वॉज अ फॉर्मर PhD student at UC Berkeley. PowerPoint was first released as a Microsoft product in the 1990s. तो इस PowerPoint का जो आइडिया था ये सबसे पहले आया था बॉब गैस्किन के दिमाग में और उन्होंने इसे क्रिएट किया था 1990s में। इसे बाद में रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। Now presentation. The file that we make in PowerPoint is called presentation. A presentation is a structured delivery of information along with graphics, sound and animation. A PowerPoint presentation is made up of several electronic pages called slides. These slides are grouped together in a sequence to form a slideshow. अब प्रेजेंटेशन होती क्या है? ठीक है, एक फाइल जो आप पावर पॉइंट में बनाते हो वो आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है। प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक स्ट्रक्चर, एक आपका प्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिलीवर किया जाता है। इसमें आपके ग्राफिक्स भी होते हैं, आपके टेक्स्ट भी होते हैं, आपके वीडियोस वगैरह भी होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक पेज जो होता है आपकी प्रेजेंटेशन में वो आपकी स्लाइड्स कहलाती है। Starting Microsoft PowerPoint 2010. To start Microsoft PowerPoint 2010, follow the given steps. Step 1, click the Start button on your desktop. Step 2, click on All Programs. Step 3, scroll down to Microsoft Office and click on it. Step 4, now click on Microsoft PowerPoint 2010. On starting Microsoft PowerPoint, a blank presentation named Presentation 1 appears on the screen. अब कैसे इसे स्टार्ट करना है? इसे स्टार्ट करने के लिए भी हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, देन ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जा करके माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 को सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटेशन 1 के नाम से वो अपीयर हो जाएगी। Components of Microsoft PowerPoint. Most of the components in the PowerPoint window are similar to the Word window. Let us learn about the components that are specific to the PowerPoint window. Slides outline pane. The Slides outline pane has two tabs. Clicking on the Slides tab shows thumbnail versions of the slides in the presentation. The Outline tab shows text outside of the information presented on the slides. Notes pane, it is the narrow area at the bottom of the Slides pane. Here we can type the notes that we want to refer to while making the presentation. View buttons.
For view buttons, a normal slide shorter, reading and slideshow are given at the bottom right corner of the PowerPoint window. They allow us to view the slides in 4 different ways. Placeholders, these are the dotted boxes seen on the slides. This is where we type our text. Placeholders can also contain pictures, charts and other non-text items. Slide span, it is the big area in the middle of the screen. We work directly on the slides in this area. तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं. इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं MS वर्ड के साथ साथ जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी कुछ अलग कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि स्लाइड्स एंड आउटलाइन पैन जो है ये आपके 2 टैब्स में डिवाइडेड होता है. अगर आप स्लाइड्स टैब में क्लिक करते हो तो आपको थंबनेल वर्जन मिल जाता है आपके स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन में. अगर आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करते हो तो ये आउटलाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन को शो करता है जो कि आपके स्लाइड में प्रेजेंट होती है. नोट पैन जो होते हैं ये नैरो एरिया होता है बॉटम में आपके स्लाइड पैन के. यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अपने नोट्स को, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंटेशन को रेफर करेगा. व्यू बटन जो होता है इसमें आपके 4 व्यू बटन्स होते हैं. नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग एंड स्लाइड शो, जो कि आपको बॉटम राइट कॉर्नर में नज़र आते हैं, ठीक है, या फिर दिए हुए होते हैं. प्लेस होल्डर जो होते हैं ये आपके डॉटेड आपके रेक्टेंगल्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह को भी आप प्लेस कर सकते हो. स्लाइड स्पैन जो होते हैं ये आपका बिग एरिया होता है इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. यहाँ पे आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो इन द स्लाइड इन दिस एरिया. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक presentation. Follow the given steps to create a new blank presentation. Step 1, click on the File tab to open the Backstage view. Step 2, select the new option from the left pane. Step 3, click the blank presentation option from available templates and themes section. Step 4, click on the Create button. A new blank presentation with a tilt slide will open. Tip: press Ctrl+N to create a blank presentation inside a placeholder. Enter text. The default slide that appears when we create a new presentation is title slide layout, which displays the dotted placeholders. अब जान लेते हैं कैसे हम न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं. सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप ओपन करेंगे बैकस्टेज व्यू को, देन आप सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन को फ्रॉम द लेफ्ट पैन. उसके बाद आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको नज़र आएगी अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शंस के साथ. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑन क्रिएट बटन, ठीक है, तो आपके सामने न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो टाइटल स्लाइड के साथ ओपन हो जाएगी. अब इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं. अगर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करना है या क्रिएट करना है तो आप Ctrl+N को भी आप प्रेस कर सकते हैं. Adding text into a placeholder. To add text inside the placeholder, follow the given steps. Step 1, click inside a placeholder to enter text. It will change to a text box. The cursor will appear in the center of the box. Step 2, type the text. After finishing the typing, click outside the placeholder. अब कैसे आप placeholder में अपने text को add कर सकते हैं? आपको simply placeholder के अंदर क्लिक करना है ताकि आप अपने टेक्स्ट को एंटर कर सको, ठीक है. तो ये जो बॉक्स है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स में चेंज हो जाएगा. आपका कर्सर जो है ये बॉक्स के अंदर अपीयर हो जाएगा. यहाँ पर जब आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे देन आप प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वहाँ पे विजिबल हो जाएगा. इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइटल साइड, we can add additional slide to the presentation. To do so, follow the given steps. Step 1, click the Home tab. Step 2, select the new slide options in Slides group. Step 3, choose the layout you want. Tip: press Ctrl+M to insert a new slide. अब आपको अगर अपनी स्लाइड्स के बीच में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं. सबसे पहले होम टैब पे आप जाएंगे, देन आप न्यू स्लाइड ऑप्शन को स्लाइड्स ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे. फिर आप उस लेआउट को चूज़ करेंगे जिसे आप चाहते हैं. देन आप की जो स्लाइड है वो आपके जो स्लाइड शो है उसके अंदर वो एंटर हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी.
अब इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बताया गया है, आप Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से ताकि आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकें। डिलीटिंग अ स्लाइड। To delete a slide, steps are as follows. Step 1, select the slide that you want to delete. Step 2, right click the mouse button and click delete slide option. The selected slide get deleted, or click on the side that you want to delete and press the delete key on the keyboard. अगर आपको कोई स्लाइड को जो आपको नहीं चाहिए उसको आपको डिलीट करना है तो सिंपली आप उस स्लाइड पे जाएंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, देन आप अपने माउस बटन पर राइट क्लिक करेंगे एंड आप डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप सिंपली उस स्लाइड पे जाके क्लिक करेंगे, देन आप अपने कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस करेंगे तो आपकी वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन। Follow the given steps to save a presentation. Step 1, click the File tab and select Save option from the Backstage view. The Save As dialog box will appear. Step 2, type the file name in File Name box. Step 3, click on Save button. The presentation will be saved with an extraction .pptx. Tips: press Ctrl+S keys to save a presentation. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को हम सेव करेंगे। आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप सेव ऑप्शन पे जाएंगे, बैकस्टेज व्यू पे आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन आपसे फाइल नेम पूछा जाएगा, आप फाइल नेम वहाँ पे टाइप करेंगे, देन आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सटेंशन .pptx के साथ सेव हो जाएगी। इसे आप शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं, Ctrl+S को प्रेस करके। Now exiting a presentation PowerPoint. To close the presentation or exit from PowerPoint, click on Close button on the title bar or click on File tab, Close to close the presentation. Click on File tab, Exit to close PowerPoint. ठीक है, अब हम जान लेते हैं कैसे हम PowerPoint से एग्जिट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी अगर प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है सिंपली तो आपको टाइटल बार पे एक क्रॉस का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या फिर आप फाइल टैब पे जा करके क्लोज पे क्लिक करेंगे ताकि आप प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकें। देन आप फाइल टैब पे जाएंगे एंड एग्जिट करेंगे टू क्लोज द PowerPoint। इसे आप Alt+F4 की के साथ भी एग्जिट कर सकते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। To open an existing presentation, follow the given steps. Step 1, click the File tab. Step 2, click the Open option from the Backstage view. The Open dialog box appears. Step 3, select the file to be opened. Step 4, click the Open button. Tap, press Ctrl+O keys to open an existing presentation. तो अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो आप सिंपली फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, देन आपके सामने कुछ फाइल्स का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको जो भी डिज़ायर फाइल को ओपन करना है उस पर आप क्लिक कर लेंगे एंड ओपन बटन पे भी आप क्लिक कर लेंगे। अब इसको आप शॉर्टकट कीज़ के साथ भी कर सकते हैं, Ctrl+O को प्रेस करके। देन स्लाइड शो। MS PowerPoint gives the option to present the series of slides in a slideshow. A slideshow is the presentation of all the digital slides that we create in PowerPoint. It displays all the slides in a presentation one by one on the screen. You can run your slideshow by any of the following methods. Step 1, click the slideshow tab. Step 2, click the From Beginning button in the Start Slideshow group, or click the slideshow icon in the bottom right corner of the screen status bar. Tip: press F5 key to run a slideshow. To end the slideshow, press the escape key. अब स्लाइड शो जो होती है MS PowerPoint में, ये आपके स्लाइड्स का ही एक ग्रुप माना जाता है। जैसे कि इसमें आपके अलग अलग स्लाइड्स होती है, वो एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर मैनर में वो क्या करती है, रन करती है, तो यही आपका स्लाइड शो होता है। ठीक है, ये आपकी सारी स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन पे वन बाय वन।
तो कैसे आप अपने स्लाइड शो को रन कर सकते हैं यहाँ पे हम जानते हैं। सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप फ्रॉम द बिगनिंग बटन पे क्लिक करेंगे इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, या फिर आप क्लिक करेंगे स्लाइड शो आइकन को इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, या फिर आप F5 की को प्रेस कर सकते हैं स्लाइड शो को रन करने के लिए, और उससे बाहर आने के लिए आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स रिवाइंड। Microsoft PowerPoint is an application software that is used to make presentation. A presentation represents the data on slide having sound and graphic effects. A slide is an electronic page of a presentation. By default, first slide of a presentation is a title slide. It should contain the title of the presentation. A slideshow is the presentation of all the digital slides that you create in PowerPoint. You can run your slideshow by pressing F5 key on the keyboard or by clicking on the slideshow button on the status bar. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.